Good evening, dear students. Today we have to start a new chapter, that is Heron's formula. In this chapter, we will introduced with the Heron's formula and know the how to use the Heron's formula to find the area of any triangle, and in which we have the knowledge of the idea of the sides of triangle. If we have the information about the three sides of any triangle, then we can use the Heron's formula to get the area. Okay, before start our new chapter, we have to revise some previous classes in which you learned about the area of triangle. Okay, how to find the area of triangle, it is the main aim of this chapter. So area of a triangle, what you area of triangle, the formula you know, that is 1/2 into base into height, and this formula was applicable only when you have the information about any triangle. Suppose that this triangle ABC, okay, and you have from each vertex, if you have vertex A, then you have to draw a perpendicular on BC. So this perpendicular, suppose that this is the point D and AD is perpendicular on the BC. So AD is the called the height and BC is the called the base. Okay, so if you have the measurement of height and this base BC and AD, then you can apply this formula. Okay, so to get the area of this triangle, and you know very well that you have the three height in a triangle and three base in a triangle. How? If you take this height, then the base is this. According to the height means the perpendicular from one vertex to the opposite side. Suppose this is vertex A and the opposite side is BC, and if you draw the perpendicular from AD to BC, then BC is the base and AD is the height. But if you draw a perpendicular from B to AC, suppose that BE, okay, then height BE is the height, and AC is the base. Okay, so you don't have used this height for this base. You cannot use the measurement of AD with the base AC. Okay, you have to use BE with the base of AC. So B is the height corresponding to the base BC and AD is the height corresponding to the base BC. And third one is, suppose that AD हो गया बेटा, BE हो गया और CF हो गया. तो अगर CF इस पर परपेंडिकुलर है तो आपका CE इज द हाइट हो जाएगा, CE हाइट होगा. CE हाइट के करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो आपका AB होगा. ठीक, तो आप इन तीनों का जो है, तीनों में से किसी एक का जो है उसका यूज करेंगे, हाइट और बेस का, और यूजिंग दिस फार्मूला यू गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. वेरी इजी. ओके, नाउ व्हाट इज आवर टॉपिक? Our topic is the Heron's formula and why the need of Heron's formula arises. Okay, if you have no idea about the height, suppose that you have a triangle, PQR, and you have the just measurement of all three sides of this triangle. Okay, so PQ is A centimeter, QR is B centimeter, and PR is C centimeter. In this case, how you can get the area using this information? So in this case you have to use the Heron's formula. Okay, now what is Heron's formula we have to understand. So let's go ahead. Okay,
see here, if you have triangle, as we assume PQR, and their sides are A, B and C. Okay, so the perimeter of triangle PQR is equal to A plus B plus C. Okay, and the semi perimeter of the triangle is denoted by S. So semi perimeter of triangle PQR is equal to A plus B plus C upon 2. Okay, and it is denoted by S. So we simply say that S is equal to A plus B plus C upon 2. Now what is the area of triangle? According to Heron's formula, area of triangle, उस एरिया की बात हो रही, उस ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है जिसके आपको तीनों साइड पता है। ठीक है, एक साइड है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है, तो उस फार्मूले की देखिए, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एस पैरेंथेसिस एस माइनस ए पैरेंथेसिस एस माइनस बी पैरेंथेसिस एस माइनस सी। This formula is known as Heron's formula. Using this formula, we can get the area of a triangle in which the sides, all three sides are given. Okay, so this is the semi. अब आपके पास अगर एरिया है और एरिया को लिखा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एस, दैट इज आपका जो आपका सेमी पेरीमीटर है। ओके, तो एस के लिए यहाँ पे फार्मूला जब लिखते हैं वेयर लिखते हैं, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, so first of all you have to calculate the S, and applying this formula you can get the area of this triangle. Okay, so and so we have to take an example to understand this question. So I am giving you we have to take an example. Okay, suppose that you have an triangle in which one side is 8 centimeter and another side is 13 centimeter and another side is 11 centimeter. Okay, suppose that this is the combination. Okay, ए की वैल्यू बेटा 8 है, बी की वैल्यू 11 है और सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। अगर ऐसा आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए अगर हम एस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये जाएगा 21 में आप 11 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 इज द वैल्यू ऑफ एस, मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। नाउ यूज दिस इन दिस फार्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट, अब यस के प्लेस पे लिखिए 16 है ना, और 16 माइनस फिर ए की वैल्यू क्या है 8 है तो 8 लिखिए, फिर बी की वैल्यू क्या है, सॉरी फिर 16 लिखेंगे एस के प्लेस पे, फिर एस माइनस बी है, बी की वैल्यू है 11, उसके बाद फिर 16 माइनस आपका 13 हो जाएगा बच्चे। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 इंटू
यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करिए। अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा बच्चे क्या 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 8 का देखिए एक पेयर बन रहा है तो 8 आ जाएगा बाहर। अंडर रूट में क्या बचेगा, ये अंडर रूट 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका होगा दिस, अगर ये आपका सेंटीमीटर में है, सारे साइड अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो आपका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो या यूनिट स्क्वायर, अगर कुछ नहीं लिखा है तो लास्ट में आप लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, जो इसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका है बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल in which all three sides are given using Heron's formula. Okay, it is very simple, and in your chapter some questions are given as a reasoning. Okay, तो क्वेश्चन तो घुमा फिरा करके देते ही हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं, कभी कभी लगता है कि नहीं दी हुई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ें दी रहती हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको फाइंड आउट करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें आपको देखने में लगेगा कि दो आपके इसमें साइड दिए हुए हैं, तीसरा साइड गिवन नहीं है, जबकि तीसरा साइड कुछ ऐसा वहाँ पर आपको दिया रहेगा हिंट। आप तीसरा साइड आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जो है तीनों साइड जब हो जाएगा आपके पास आ जाएगा तो आप इसको यूज करके के आप फार्मूले को आप जो है इसके एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कोई क्वेश्चन बताना होगा तो एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूँगा। तो अभी तो बहुत ही कम समय हुआ, 12 मिनट हुए हैं, तो मैं देख लेता हूँ आपके एनसीईआरटी बुक से कोई क्वेश्चन अगर हो जाता है तो आपके सामने रखता हूँ। Okay, dear students, see here, I have taken a question from your NCERT book, and this is the exercise. It is old NCERT. Okay, so 12.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन ये आपके नए NCERT में एक्सरसाइज 10.1 में गिवन है। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, and in this question there is two questions. Okay, so we have to understand first what is the question. See here, a traffic signal board indicating school ahead. एक ऐसा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। स्कूल अहेड एक वर्ड लिखा हुआ है, दो वर्ड लिखे हुए स्कूल अहेड। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर ये साइड ए होगा तो दूसरी साइड भी ए होगी और तीसरी साइड भी ए होगी। ठीक है, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। विद साइड ए यहाँ पे दिया भी हुआ है, विद साइड ए, अगर एक साइड ए है तो तीनों साइड ए ए ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, फुल स्टॉप। तो यहीं पे रुक जाइए, पहला क्वेश्चन यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है ए। ठीक, तो एक साइड ए है तो तीनों साइड ए ए होगा। ठीक है, अब देखिए करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप इसका जो है सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी होता है। यहाँ ए और बी और सी तीनों की वैल्यू क्या दिया है, ए दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए, यानी साइड प्लस साइड अपान 2 इज इक्वल टू 3a अपान 2। दिस इज द सेमी पेरीमीटर। नाउ यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, द एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। Now substituting the values of s and sides, s की वैल्यू कितना बच्चे
3a/2 है, पैरेंथेसिस 3a/2 माइनस a, फिर 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हमको करना ये है कि जो हमारे पास ये अंदर 3a/2 माइनस ए है, 3a/2 माइनस ए है, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं और एक को अंदर रहने दे सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। जैसे हमारे पास है 3a/2 माइनस ए, इसको ज़रा सा हम रफ़ की कॉपी में अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 3a माइनस 2a/2 इज इक्वल टू a/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a/2 अंडर रूट 3 इंटू a/2, इसको हमने लिखा है, इसका फैक्टर कर दिया इंटू, अब इसकी वैल्यू हमारा क्या है, a/2 है, इंटू इसकी वैल्यू a/2, फिर इसकी भी वैल्यू a/2, ठीक है। अब आपको बेटा दो दो का पेयर बनाना, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा a/2 इंटू a/2 और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, इज इक्वल टू a² अंडर रूट 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका जो है एरिया होगा, एरिया एक ऐसा एरिया जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, जिसके सभी साइड है ए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसी में है इफ़, यहाँ पे देखिए कंडीशन लगाया है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा अगर इसी का जो है पेरीमीटर गिवन है। तो बच्चे अगर पेरीमीटर गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया आप फाइंड आउट कर चुके हैं, चाहे तो आप इसमें वैल्यू को पुट कर दें और फिर से सॉल्व करें चाहे तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे। जैसे कि पेरीमीटर कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है, तो 180 डिग्री अगर यहाँ पर करेंगे तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 180/2 यानी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 ये आ गया। और दूसरी बात, आप एरिया आप जो है साइड भी निकालना चाहें तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर P इज इक्वल टू कितना है, 180 है, और ये क्या है, a प्लस a है, यानी 3a की वैल्यू क्या दिया है, 180 दिया है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 यूनिट, ओके, यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम रफ वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, उसके बाद आप करेंगे ए की वैल्यू तो आपको पता चल ही गई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे चाहे तो पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पुट कर लें। और क्या कैलकुलेट करना था, अगर आप यस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर से इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यस की वैल्यू भी तो वही आएगी ना, 3a/2, तो यहाँ पे 60 रखेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे, फिर 90 आएगा, तो 90 माइनस बार बार आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली कर लीजिए इसको, अगर इसका आप 60 का स्क्वायर करते हैं, 60 का स्क्वायर करते हैं, 60 इंटू 60/4 करिए, इंटू अंडर रूट 3 करिए, कितना आ जाएगा आपके पास, तो 2 2 जा 2 3 जा, फिर ये आ जाएगा आपका 900 अंडर रूट 3। दिस इज योर आंसर, ओके। तो इस तरह से आपने आंसर, अब ये आपने कैसे किया, देखिए आप जो है इसी आपके ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो यही तो आपका एरिया आएगा, तो ये एक तरह का फार्मूला भी आपका बन गया था। आपने केवल ए की वैल्यू कैलकुलेट किया और इसमें आपने इसकी वैल्यू को क्या किया, रिप्लेस किया और सॉल्व किया, तो आपका आ गया आपका आंसर 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चे इसमें दो आंसर आया होगा, एक ये है और दूसरा ये, ठीक है।
अब आप चाहें तो इसका यूज ना करें, डायरेक्ट जो है फिर से पूरा काम करें, तो फिर से पूरा काम करने कोई मतलब है नहीं। आप चाहे तो करके देख लें, और समय बहुत कम है, मैं समय एक बार फिर से देख लेता हूँ। देखता हूँ कितना समय हुआ है। देखिए 20 मिनट हुआ बच्चे, और आप चाहें तो इसको करके देखें और देखें कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही है क्या। ठीक है, तो डिफरेंट अगर वैल्यू आएगी तो आप हमको बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। तो इस वीडियो को बेटा मैं यहीं क्लोज करना चाहता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट किसी क्लास में मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल में आपको वीडियो लेकर आऊँगा, कुछ और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी for any personal guidance or coaching institutes, okay, then you can call me on my number. Link is given below in the description. Okay, thank you so much for watching this video.